Hello everybody. Today I will show how to solve the assignment 5 of the Python classes. First we will look the questions or the questions like question number 1 is we have given an list of the temperatures, and here we need to replace the null element in the given temperature list by the mean of its previous element and which is the afterward element. So first we will see how to solve this. So here I have already solved this. Like we have the temperature list here. This is the in the question. Then I will use the for loop for the range of like the length of the temperatures. Then we will see if the temperature at a given element is equal to null. Like it means like we need to check whether temperature at a given element is null or not. If it is null, then I make the command or make the code like, then replace the current element in the list with its average of the previous element and the afterward element. Like the current element is I at the ith place, and its previous will be the I minus 1, and the afterward element from the current element will be the I plus 1, and then divided by 2. It will give us the average temperature, and replace the null element with the average of its previous and the afterward element. Then when it will finish the for loop, then we can print the temperatures like this is like as a string, and here it will give the list of the temperatures in which the null element was already replaced with the average of its previous and the afterward element. Yeah, so second question is we have a multi-dimensional matrix, and we need to modify this matrix as a diagonal matrix. Diagonal matrix means in which the diagonal elements are as the same as it is, and all the other elements are the at which I and j is not equal, should be equal to 0. That element, the element at which I and j is not equal, that element should be equal to 0. So in this I will use a nested loop for this. Like this is the given matrix, then I will use the for loop, first considering by the I option or the I symbol. Then at the ith place, like 0 0 at this place, so I is 0, and then I consider the for loop again in the range of, by considering the previous I. So it means like the जो पहले था उस I पे J का वैल्यू अब चेंज हो जाएगा. So it means like if at this point I and J is equal, then we retain the matrix as it is, or we retain the element as it is. Else change the element equals to 0. So it means I पे पहले I पे ये कंसिडर करेगा, फिर I के अंदर ये J का वैल्यू चेंज हो जाएगा. लाइक J का वैल्यू पहले 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा. फिर I पे ये फिर इसको I पे ये फिर इसको वापस देगा कमांड, और अब I का वैल्यू चेंज हो जाएगा लाइक 1.
एंड उसके बाद जे का वैल्यू हो जाएगा पहले 0 और फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2. सो हेयर 0 0 0 1 0 2, फिर यहाँ पे जाएगा ये वाला दूसरा एलिमेंट. सो दिस इज द way how we can solve the question number second, and after that this is for the entering into the lines. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है हमारे पास दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एंड वी नीड टू combine the elements of the respective lists at the respective position, and then we need to find the result list. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 है उसको हम ये 9 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट में पहले पोजीशन पे क्या आ जाएगा. तो दिस वे वी नीड टू सॉल्व दिस. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लाइक दिस. सो दिस आर द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. उसके बाद हम फॉलो फिर रन करेंगे विद द रेंज ऑफ लाइक द लेंथ ऑफ द लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे दोनों में सेम है तो दोनों में दोनों का ये पोजीशंस कंसिडर करेगा. अब उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि आपके पास अब और एक वैल्यू है जिसको हमने नाम दिया है रिज़ल्ट, बट उस रिज़ल्ट में जो पहला एलिमेंट है वो किसके बराबर है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को जब ऐड करेंगे तो वो उसके बराबर है एट द ith पोजीशन. यहाँ पर दिया है ith पोजीशन. तो उसके बाद अब अगर i का वैल्यू 1 आ जाएगा तो मीन्स एट दिस पोजीशन, एट दिस लोकेशन, तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट में ये वाला पोजीशन हो जाएगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, 9 एंड प्लस 3. तो ठीक है, तो फिर हम एट द एंड प्रिंट करेंगे रिज़ल्ट, एंड दिस इज़ फॉर चेंजिंग द लाइन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो लिस्ट फिर से दिए गए हैं, लेकिन अब इस वक्त हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, लाइक एक द स्केलर क्वांटिटी. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे पहले मैं था कि एट द गिवन पोजीशन वी नीड टू कैलकुलेट इट्स सम, बट हियर वी नीड टू कैलकुलेट इट्स मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर दैट जो रिज़ल्ट में आ जाएगा ना लिस्ट, उसका जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स होंगे या उसके जो ऑल एलिमेंट्स होंगे उसका फिर लास्ट में ऐड करना है. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिस वन. तो पहला सेम एज द प्रीवियस, खाली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन एट द ith पोजीशन एट द या. अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें लास्ट में उसका सम चाहिए. तो पहले हम सम को असाइन करेंगे, पहले लाइक फाइनल वैल्यू, पहले जो फाइनल वैल्यू था ना वो 0 लिया हमने, या सम इज इक्वल टू 0. उसके बाद जो फाइनल वैल्यू लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा एक ये डॉट प्रोडक्ट, लाइक जितने भी पीछे डॉट प्रोडक्ट आ गए हैं उनका वैल्यू, लाइक पहले तो 0 था, फिर इसके बाद इसका वैल्यू, तो वो हो जाएगा इसमें ऐड, लाइक फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट एंड ये 0 वैल्यू. ठीक, अब फिर फाइनल वैल्यू, अब जो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा वो फाइनल वैल्यू का असाइन होगा. ठीक है ना, वो फाइनल वैल्यू का यहाँ पे असाइन होगा, फिर i का चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक लिस्ट हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट मार्क्स. तो अब हमें इसमें देखना है कि इस लिस्ट में मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है, like direct without using the direct command of the minimum and the maximum in the Python. Like अगर हम direct command use करेंगे minimum and the maximum, we will get the answer in the one line. But कोई और तरीका हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे, पहले इसमें हम इसमें assign करेंगे minimum. तो यहाँ पे एक थोड़ा ये ट्रिकी मान लो या थोड़ा उल्टा मान लो. तो मिनिमम हमारे पास जो है ना वो एक्चुअली 0 है, लेकिन अब हम असाइन करते हैं मिनिमम 100 को. फिर देखेंगे कि जो करंट पोजीशन पे ये जो वैल्यू है क्या ये इस 100 से कम है. अगर ये इस 100 से कम है तो फिर इस 80 को हम क्या मिनिमम वैल्यू लेंगे.
फिर दूसरे पे पहुंचेंगे। तो पहले क्या था 100, तो 80 100 से ऑब्वियस कम है, तो फिर ये इसको असाइन करेगा मिनिमम। तो उसके बाद क्या पहुंचेगा दूसरे एलिमेंट पे, लाइक I इज इक्वल टू 1 इन द रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स। ठीक, तो फिर यहाँ पे अब 80 से भी कम है 75, तो 75 को ये अब मिनिमम लेगा। उसके बाद 63, उसके बाद अब 90, तो 90 पे इसने पहले ही 63 लिया है ना मिनिमम, अब ये इससे कम नहीं है। तो करंट पोजीशन पे स्टूडेंट मार्क्स एट द 8th पोजीशन पे जो वैल्यू आया है वो पिछले वाले मिनिमम से क्या कम है। अगर कम है तो इसी को असाइन करो, इसी स्टूडेंट मार्क्स को हम क्या असाइन करेंगे, मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये तो मिनिमम नहीं है, तो दैट मीन्स ये उसको असाइन नहीं करेगा। अब फिर जाएगा है 99, अब लास्ट में देखेगा क्या 59 इन पिछले वाले से भी कम है। अगर कम है तो इसी को मिनिमम इसी को असाइन करेगा, तो फिर लास्ट में इसको एज अ प्रिंट देंगे मिनिमम। ठीक, अब जैसे हमने मिनिमम को लिया है 100, अब उसी तरीके से हम मैक्सिमम को 0 लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो करंट पोजीशन पे वैल्यू है क्या वो इस 0 से ज़्यादा है। अगर वो इस 0 से ज़्यादा है तो उसी को मैक्सिमम ले लो, ठीक है ना, तो उसी को मैक्सिमम ले लो। अगर उस करंट पोजीशन पे ये 0 से ज़्यादा नहीं है तो वही वाला जो पुराना वाला मैक्सिमम था वही रहेगा, तो दैट इज़ द सेम एज द प्रीवियस। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लेस देन मिनिमम लिया है, तो यहाँ पे हमने क्या जो करंट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या ज़्यादा है पिछले वाले मैक्सिमम से। अगर वो ज़्यादा है, अगर वो इज़ ग्रेटर देन दिस वन, अगर वो ज़्यादा है तो इसी को ले लो क्या, मैक्सिमम। ठीक है, तो लास्ट में ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो द end of the assignment. So thank you for watching, and I hope it will help you in future points. Thank you.